Assalamu alaikum. Let's discuss another numerical from the same topic. The problem statement says that to determine the velocity of each block 2 seconds after the blocks are released from rest. Neglect the mass of the pulleys in cord. तो हमारे पास दो blocks हैं. Block A whose mass is 10 pounds and block B whose mass is 50 pounds. And then we need to find the velocity after they are released, after 2 seconds after they are released, right, from the rest. First of all पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं. Datum is drawn, यहाँ पे datum draw किया गया है जिसमें हमारे पास दो different lengths हैं, SA and SB. SA is basically is the length of for this SA and this is for B, right? So yeah, these are the free body diagrams, and as you know that we have covered this topic in the previous classes. The weight acting downwards has two reactional forces or tension in the ropes, T and T for case A, and we have one tension in the rope which is the weight is W, right? So 50 pounds and here 10 pounds. We have a single T here and we have double T. Moving further, first of all let's find the length. तो length की वैल्यू जो हमारे पास length की टोटल वैल्यू है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2SA प्लस SB बराबर किसके है, L के बराबर है. हमने का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट इनको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास 2VA प्लस VB और L की वैल्यू 0 हो गई बिकॉज L इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज द सेम लॉजिक व्हिच वी अप्लाइड in chapter number 12, right? So now let's discuss about the linear impulse and momentum equation for block A. तो पहला ब्लॉक है, उसके लिए अगर मैं बात करता हूँ मोमेंटम की, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है बिकॉज Vy मतलब बिकॉज इट इज मूविंग इन द वाई डायरेक्शन, 1 मतलब इनिशियली, बट सिंस द वेलोसिटी इज 0 एंड इट इज एट रेस्ट, तो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी. दूसरी टर्म में देखते हैं कि जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एट फॉर डिफरेंट टाइम वो कितनी है. तो पॉइंट फॉर केस ए वी हैव टू टेंशंस acting upwards, which means they are positive, and the amount that the quantity of time or the amount of time which they are acted upon is 2 seconds. तो पहली टर्म 2t into 2 है माइनस द वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 10 और उसके लिए भी 2 सेकेंड्स ही हैं, इक्वल्स टू माइनस 10 बिकॉज इट इज मूविंग डाउनवर्ड. तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो अननोन है, v है फाइनल वेलोसिटी बिकॉज इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स. ये इसका मास है 10/32.2. तो इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बन गई. Similarly, same logic can be applied for the mass B, where the initial velocity is 0, hence the initial momentum is 0. Then we have the forces which are acted upon for 2 seconds. So the tension is acting upward and the weight is downward. And similarly, we have the negative momentum which is acting downwards, right? दो equations हैं and दो variables हैं. आपके पास VA, हमारे पास दो equation हैं, तीन variables हैं, not दो equation, VA, VB. ये दो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है. तो हमारे पास एक इक्वेशन V है और VB है, इसमें V है और T है, इसमें T और VB. तो तीन वेरिएबल्स हैं, VA, VB और T, और तीन इक्वेशन है. तो हमारे पास यहाँ से VA, VB और T की वैल्यू आ गई. तो मतलब ये आपके पास जो V है वो नेगेटिव है बिकॉज डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, और सिमिलरली सेम गोज विद द VB. So this is a pretty simple numerical. So moving further with the next numerical, here we have a numerical which says that forces F1 and F2 vary as shown by the graph. We have two forces F1 and F2 जो कि एक स्मूथ डिस्क है उस पर अप्लाई हो रही है. स्मूथ डिस्क जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रही है. इफ यू कैन सी द फिगर क्लियरली, the velocity of the disk is towards the left hand side, and y is positive upward and x is positive on the right hand side. We have two forces acting on this disk which is F1 and F2, and F1 and F2 are basically changing with respect to time, and the graph which is representing the change is shown here in this figure. So F1 is represented by this solid line, purple line, whereas F2 represented by this dotted line. अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे जो f है वो फंक्शन है किसका, टाइम का. इट मीन इट्स नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट्स नॉट अ कांस्टेंट फोर्स. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पहले बात के वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जो है वो 3 सेकेंड्स है जब टाइम 0 है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्क. डायरेक्शन भी निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है किसका, वेलोसिटी का जब t = 4 सेकेंड है. अब देखो इसका मतलब ये है कि पहले
जो डिस्क है वो मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से, उस पर इन दो फोर्सेस ने दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, और वो दो फोर्सेस जो है वो किस तरह एक्ट कर रही हैं, वो इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के थ्रू ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है। और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, v2 हो जाती है, फाइनल मोमेंटम आ जाता है। ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो f की वैल्यू है ये वो फंक्शन है टाइम का, बट स्ट्रेट लाइन्स है। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन है इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल इक्वेशन वो हम देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पहले ये देखते हैं कि जो इम्पल्स है इन फोर्सेस F1 एंड F2 का, वो क्या होता है, F टाइम फोर्स इनटू टाइम, राइट। तो अगर मैं आपसे, अगर इफ़ यू कैन सी दिस ग्राफ, you can see that the area under the curve of these two forces, पहले हम बात करते हैं सॉलिड लाइन की। तो सॉलिड लाइन जो है वो एक लाइन 0 से 1 तक स्ट्रेट लाइन है, फिर 1 से लेके 3 तक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, देन वी हैव अ डिप, देन वी हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वी हैव अ डिप। अगर मैं इस सॉलिड लाइन का तमाम एरिया निकाल लूँ, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड टी होगा, and that will be representing the impulse of force 1. Similarly, अगर मैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस राइट लाइन निकालूंगा तो वो एरिया वो भी सिंपली f इंटू टी होगा। अगर आप गौर करो तो इम्पल्स की वैल्यू बेसिकली क्या हो रही है, एरिया अंडर द फोर्स कर्व्स, राइट। तो अच्छी बात ये कि सिंस दीज आर द कांस्टेंट स्ट्रेट लाइंस, तो हम बहुत आराम से इनके एरियाज को सम कर सकते हैं। तो अगर मैं सॉलिड लाइन के एरिया को 3 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, पहला हिस्सा जो है वो ट्राइंगुलर एरिया है, फिर rectangular area, and then we have another rectangular area. That's pretty simple. So for the impulse 1 we have a triangular area which is 1/2. Triangle का area क्या होता है, 1/2। इसमें 20 फोर्स है हाइट, और जो इसकी बेस है वो कितनी हो गई, 1। तो पहला वाला इम्पल्स प्लस, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसमें हाइट जो है वो 20 है, और जो इसकी जो टाइम डिस्टेंस है 3 - 1 विच मीन्स 2, ये आपके पास 3 - 1 2 आ गया, प्लस अब जो लास्ट वाला है 3 - 4, ये लेंथ हो गई, और ये लेंथ जो है उसकी 10 है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस फिगर को, पर्पल फिगर को 3 हिस्सों में तोड़ा है। पहला सेंटर वाला पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन ट्राइंगल है, सेंटर वाला पोर्शन रेक्टेंगल है, और थर्ड पोर्शन भी रेक्टेंगल है। तो हमने इन तीनों फिगर्स का एरिया निकाला, तो हमारे पास क्या आया, फोर्स 1 का जो इम्पल्स है वो आ गया 60 Newton/सेकेंड। सिमिलरली जो दूसरी फोर्स है उसका पहला जो फिगर है वो ट्राइंगल बन रहा है, then you have two triangles, like first triangle is from 1 to 3 and then 3 to 4, so you can have that 1/2 height into 3 - 0. This is pretty simple. If you get the idea of the area under these curves, you can very easily find the impulse of these two forces. I just simply calculated the area under the curve, right? तो पहला एरिया जो है वो f सॉलिड f का है, तो 1 2 3, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एक पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और जो दूसरा वाला एरिया है उसके लिए 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो पहला ट्राइंगल जो है वो ये है, और दूसरा ट्राइंगल ये है। तो आपके पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं जो इनिशियल मोमेंटम है। इस बॉडी पे जो इनिशियल मोमेंटम है वो लेफ्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो आपने पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, फिर हम बात करेंगे वाई एक्सिस की। तो फॉर द एक्स एक्सिस, because the initial momentum is along positively, the initial momentum is purely along x-axis, और since it is opposite direction में है तो हमारे पास नेगेटिव आ गया। मास की वैल्यू 5 है, v1x जो है वो 3 है। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। हमारे पास पहला जो मोमेंटम, पहला जो इम्पल्स है जो आपके पास वो 40 है। यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे, या हियर यू गो। तो आपके पास जो पहला वाला इम्पल्स है F2 जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली पॉजिटिव है और प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है। तो F2 पे जो की वजह से जो इम्पल्स लग रहा था वो यहाँ पे देखें आप 40 आया था, तो हमने डायरेक्ट 40 लिख दिया। जबकि जो 60 की वजह से इम्पल्स है वो एक एंगल बना रहा है 30, तो हम इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे और वो भी नेगेटिव एक्सिस में। तो हमने 60 जो कि हमने यहाँ से निकाला था इंटू cos 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे since we have already multiply, ये जो impulse निकाला है, it is not forces, ये impulse है, इसका unit already Newton second है। On the right hand side we have 5 which is a mass, and we have Vx which is the x component of the final velocity। यहाँ से हमारे पास Vx की वैल्यू आ गई। Similarly, जब हमने momentum को along y sum किया है, तो since the disk is moving along the x axis purely, तो उसका y momentum कोई नहीं है, तो हमारे पास
mv1 y0 है और हमारे पास जो इम्पल्स है वो इस वाली फोर्स का इम्पल्स नहीं होगा बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, और f1 का जो है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा बट with a sine component. So 60 times sine 30 equals to 5 mass and Vy. So from here we got 6 meter per second. We have the final velocities x component and final velocities y component, and when we take a Pythagoras, when we use the Pythagoras theorem, or we can simply add them through the vector summation from this graph equation, this figure. It is coming out to be 8.07. Now we need to find the angle. So angle is basically simply Vy upon Vx, which is 6 upon 5.3 and coming out to be 48.1 degree, and that shows the direction which means that the Vx is negative, which means it is moving in the left hand. The final velocity is along the x-axis, it is left hand side, but the Vy is positive, which means it is moving left and upward, which is going into the second quadrant of x and y coordinate system, right? So here we calculate the angle, which is coming out to 48 degree, and that is the angle between the velocity vector and the x axis. I hope this question is clear. If you have any question, please uh, watch the video multiple times. This is not difficult. Please pay some attention and spend some time on these numericals. These are really crucial numerical as far as exams are concerned. If you have any question, please ask me in the help sessions, and please spend some time solving these problems and example from the book yourself. I will be uploading another assignment from chapter number 14, and so I hope that will help you a lot. So thank you very much, guys, and inshallah in the coming week we will be having live sessions, live session for the following topics. Thank you very much. Allah Hafiz.